بستیاں جلتی، ہماری تباہی اور بربادی ہوتی، پولیس بے چین گولیوں سے سینوں اور سروں پہ داغنے کے لیے بے چین تھی۔ ارے کامیاب حکمت تھی کہ عصمتوں کو بچایا، آبرو کو بچایا، سہاگوں کو بچایا، بستیوں کو اجڑنے سے بچایا، تو دنیا نے سودے باز کا خطاب دیا۔ لیکن ہم نے پرواہ نہیں، اور ان کا کردار صرف سیاسی دکان ہوئی ہے۔ ارے یہاں پر ہزاروں کا مجمع ہے، ارے اس مجمع سے کہوں گا خدا نہ کبھی آپ یہ بھی تو سوچو کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینوں میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، تڑپتی ہوئی آہ ہے۔ ارے ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ملت اسلامیہ کے غدار ہماری کردار کشی کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اب کیا نئی سازش ہو رہی؟ بی جے پی کو حیدرآباد چھوڑ رہے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، اب تک نہیں بولا آج بول رہا ہوں، ارے حد ہو گئی، یہ سب کے سب مل کر سازش کرے، پیسہ جمع کرے اور 5 کروڑ روپیہ دیا ہے ایک آدمی کو۔ کس کے لیے 5 کروڑ دیا ہے؟ تو اکبر الدین اویسی کو گولی مارنے کے لیے بمبئی کے، دبئی کے بڑے بڑے شوٹروں کو پیسے دی ہے کہ اکبر اویسی کو مار ڈالو یا بم پھینک دو، اس کے ٹکڑے کر دو۔ اگر ٹکڑے نہیں کریں گے تو حیدرآباد کے مسلمانوں کا اتحاد ختم نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ پیسے دے کر اپنے زرخری غلاموں کے ذریعے ہم کو مارنا چاہتے ہیں۔ اے زاہد علی خان، اے لطیف خان، اے ناخلف اولادو، ناخلف اولادو، تم کیا مار سکیں گے اکبر اویسی؟ ایسا کوئی چوڑی کا بچہ نہیں ہے کہ یہاں سے آئے وہاں سے آئے مار ڈالیں گے۔ ارے سہلاب نے کیا کہا تھا جب دنیا نے کہا کہ 25 برس کے بچے کو بھیجے ہیں شیر سے مقابلہ کرنے، تو میرے باپ نے کہا تھا ارے یہ بچہ نہیں ہے، یہ شیر کا بچہ اور بچہ ہے۔ ارے آج بھی کہہ رہا ہوں شیر کا بچہ ہوں، شیر ہوں۔ ایک مشورہ دوں گا، مارنا ہے تو خدا کی قسم پورا مار دو، اگر بچ گیا تو تمہاری 14 نسل کو پنپنے نہیں دوں گا۔ مجھے چھیڑو مت، اگر چھیڑیں گے تو یاد رکھو اکبر اویسی کی نظر میں نہ دولت عزیز ہے نہ اختیار عزیز ہے، میرے جوتیوں کی ٹھوکر پر نوک پر ہے ایم ایل اے شپ و اختیار۔ میری عزت کو، میری خودداریت کو، میرے مرحوم باپ کو کچھ نہ بولو۔ اگر تم میری عزت کو للکارے کہ تم زندہ ہو تو عزت کے لیے، جیتا ہو تو عزت کے لیے، ارے ملت کی خدمت کر رہا ہو تو خودداریت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن تم اگر میری عزت کو للکارو گے، میری خودداریت کو للکارو گے، میرے باپ کو تم کچھ بولو گے تو خدا کی قسم میں بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ بہت ہو گیا، ہم نہیں چاہتے۔ چنچل گڑے میں لوگ بولے اکبر صاحب آپ اتنی نرم تقریر کریں۔ ارے اکبر اویسی غرور اور تکبر کا مالک نہیں ہے، میں غرور اور تکبر سے پرہیز کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی زبان دی، جو چاہے کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ مجھے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد آئی کہ میرے والد نے کہا تھا کہ اکبر یاد رکھو دنیا میں اگر تم کو عزت کمانا ہے تو تم وسیع النظر بنو، وسیع الدل بنو، ایسی نظر پیدا کرو کہ 7 سمندر پار دیکھ سکو، ایسا دل بناؤ کہ 7 سمندر تمہارے سینے میں سما جائے۔ میں عوام کے مزاج کی طرح چنچل گڑے میں ٹھہر کر کسی کو گالی گفتار کر کے اپنے خاطبانہ صلاحیت کو اجاگر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میری نظر میں میرا خطاب، میری عزت نہیں
है। अगर मेरी नजर में कोई चीज अजीज है तो मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद, मिल्लत इस्लामिया का वक़ार, मिल्लत इस्लामिया का ईमान, जिसके हिफाजत का मैं गुलाम हूं, उसके हिफाजत का मैं सिपाही हूं। और हम मरते दम तक हिफाजत करेंगे। आज चंद्रायन गुट्टे में अकबर ओवैसी ने 10 बरस में कोई गुंडागर्दी नहीं की। मैं कहना नहीं चाहता, इस दाइश में भी कई लोग हैं जो अकबर ओवैसी की मोहब्बत से, हमारे खुलूस से जमात में शामिल हुए। हमने सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल किया, मोहब्बत से दिलों को जीता। कोई नहीं कह सकता कि अकबर ओवैसी ने किसी को पुलिस में कटवाया, किसी की रोटी शीट खोली, किसी को मारा, किसी को धमकाया। लोग बोलते अकबर साहब आप कुछ नहीं बोलते। नहीं बोल सकता भाई, नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि मेरे सीने में धड़कता हुआ ईमान वाले का दिल है। मैं कैसा बोलूं एक दूसरे ईमान वाले को? अरे मैंने क्या दिया चंद्रायन गुट्टे को? तालाब कट्टे का स्कूल दिया, अमान नगर कॉलोनी में 1000 गज की जमीन स्कूल के लिए, बाबा नगर में 1000 गज स्कूल की जमीन, अल सुरूर कॉलोनी चंद्रायन गुट्टे में 1000 गज पे स्कूल की तामीर हो चुकी। कल 1000 गज पे 6 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग की तामीर का संगे बुनियाद रियासत नगर में। 2 एकड़ जमीन बल्लागुड़े में 1.5 करोड़ में खरीदी है। किसके लिए? उस 1.5 एकड़ जमीन में एक दवाखाना हो, एक स्कूल हो, और स्कूल और दवाखाने के दामन में एक यतीम खाना हो जो यतीम बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। आज अकबर ओवैसी की इतनी जायदाद बोलते हैं। अरे मेरा एक घर है, 2-3 फ्लैट है, गंडीपेट में एक बाग है, लेकिन मैंने मिल्लत को क्या दिया? तालाब कट्टा, रियासत नगर, अमान नगर, सालम चौक में जो दवाखाना चल रहा है वो भी मेरी जाती मिल्कियत है, वो बाबा नगर। और उसके बाद 50 प्ले स्कूल चल रहे हैं चंद्रायन गुट्टे में। कितने? 50। कोई औरत है, लड़की है, 10 पास है, उसका जाती घर है, तो मैंने वैसे लड़कियों को बुलाकर तालाब कट्टे के स्कूल में ट्रेनिंग दी। 10 पास बच्चियों को काहे की ट्रेनिंग? कि अपने घर के कमरे में तुम स्कूल चलाना, किताबें, ब्लैक बोर्ड, शतरंजी सब मैं दूंगा, महीने को 3000 तुम मेरे से ले लेना। कितने? 50 प्ले स्कूल चंद्रायन गुट्टे में चल रहे हैं। कोई किया इतना काम? कोई करे? 250 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, गरीब यतीम बच्चों की शादी। अरे यहीं पर है मलिका फर्नीचर, जाओ जाके मलिका फर्नीचर के मालिक से पूछ लो कि रोजाना कितने लोग अकबर ओवैसी की दस्तखत करदा चिट्ठी लेकर आते हैं शादी के सामान के लिए। कितनों का? मेहंदी के काम की ट्रेनिंग फ्री, सुइंग सेंटर फ्री, ट्रेनिंग फ्री, अगरबत्ती की ट्रेनिंग फ्री। अरे यहां तक कि नाचारम में 400 बच्चों को तालाब कट्टे के मुलाजमत मिली, जेमन ज्वेलरी पार्क में 100 लोगों को। अरे तुम क्या करें? अकबर ओवैसी से जज्बाती तकरीर नहीं करता, बल्कि अमल करता है। अमल के जरिए अपनी पहचान, अपने नुकूश को छोड़ रहा है। सालार मिल्लत ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का कयाम किया, कॉलेजेस बनाए, तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर में एक बुनियादी तालीम का इनकलाब बर्पा करके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हैदराबाद सबसे पढ़े लिखे मुसलमानों का दारुल हुकूमत व मरकज बन जाएगा। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारा इरादा है, दुनिया से रुखसत होने से पहले करने का। अरे तुम क्या कर रहे हो? लतीफ खान की कितनी दौलत? ऐलान कर दो, लतीफ खान स्टेट में मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं। बल्लागुड़े में जो यतीम खाना, जो दवाखाना और स्कूल में बना रहा हूं, कितने में बन रहा है आपको मालूम मेरे भाई? 20 करोड़, 20
करोड़ में। ये तालाब गड्ढे का स्कूल कितने में बना? 2.5 करोड़ में। महाने का खर्चा सारे स्कूल्स के तनख्वाहों का कितना है मालूम आपको? 4.5 लाख रुपए का महाने का खर्चा है मेरा। किसको दे रहा हूं? अपने लिए, अपनी जात के लिए। अरे दियानतदार, ईमानदार, बाप का ईमानदार बेटा हूं। इस मजमे में से कोई एक भी उठ के कह दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये जमीन की प्लॉटिंग की, यहां जमीन बेचा, यहां पे गुत्तेदारों से पैसा लिया है, तो खुदा की कसम इंतखाबात के मैदान को छोड़ो, सियासी जिंदगी छोड़कर चला जाऊंगा। अरे हम मिल्लत के लिए करते हैं। अरे आज अकबर ओवैसी 35-37 बरस का ये नौजवान आज काम कर रहा है अपने जवानी में। अरे जवानी में मैं रंगरलियां नहीं बना रहा हूं, जवानी में अपने जवानी की खूबत, अपने जवानी की ताकत, अपने जवानी की कमाई गई दौलत मिल्लत इस्लामिया के लिए उड़ा रहा हूं। आज लतीफा दाए ने लिखा, अपने शहीदी में मरते वक्त मिल्लत इस्लामिया की रुसवाई करके दुनिया से जाना चाहते हैं। अरे मुझसे पहले भी एमएलए थे, क्या करें? अरे आज हम मिल्लत इस्लामिया के लिए काम कर रहे हैं। मुझे मारना चाहते मार लो, कुछ होने वाला नहीं। अकबर ओवैसी मर जाएगा तो मिल्लत का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने अकबर ओवैसी को इस एजाज और मुकाम से नवाजा कि मुझ जैसे गुनहगार से मिल्लत इस्लामिया का काम ले रहा है। मैं नहीं, कोई और सही, कोई और सही नहीं, कोई और सही। अल्लाह का काम शख्सियत का मोहताज नहीं, शख्सियत अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह का काम तो जारी रहेगा, कायम रहेगा, मेरा जनाजा उठते रहेगा और अल्लाह दूसरे अकबर ओवैसी को दुनिया में हाजिर कर देगा, पेश कर देगा। मिल्लत का काम आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आज अकबर ओवैसी ऐसा, अकबर ओवैसी वैसा। अरे मैं मिल्लत का सिपाही हूं, मुजाहिद हूं। मेरी दिल की ख्वाहिश है तो जामे शहादत नौश फरमाना। जब तक जिंदा हूं अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करूंगा और जब मर जाऊंगा तो जामे शहादत नौश फरमाते हुए अपने लब पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। शेरवानी, दाढ़ी टोपी पहन के गोलाल जुलूसों पे माथा टेकने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मुसलमानों का लीडर रहूंगा और मुसलमानों के लीडर की हैसियत से दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह से मांगता हूं, अल्लाह ही से मांगूंगा। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं और गुलामों से मांगूंगा। सरकार मदीना के उम्मती से मांगूंगा। मुसलमानों के दर दरवाजे पे दस्तक देके भिखारी बन के खैरात मांगूंगा तो मुसलमानों के दर दरवाजे से मांगूंगा। खैरात अपनी जात के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सरबुलंदी के लिए मांगूंगा। मैंने इतनी देर आपसे मुखातिब किया है, आपसे तकरीर की है, यहां मेरे चाहने वालों की है हजारों की तादाद में देख रहा हूं। अरे एक एक घंटे, 1.5 घंटे की तकरीर से ये फसलियां दर्द होती हैं, ये हलक दर्द होता है, हलक से खून निकलता है, ये कनपट्टियां मान लेती हैं। ये देखो इन होठों को कि सफेद हो गए हैं। अरे इतनी तकरीर, इतना जज्बा, इतनी आवाज, इतनी चीजें किसके लिए है? खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान की सरबुलंदी के लिए है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। अपने इत्तेहाद को कायम रखो। अरे इतनी देर से मुखातिब करने
کی خیرات کو ڈال دو، میں اس کو سمیٹ کر ملت اسلامیہ کی سر بلندی کہیں نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں حیدرآباد کے اس اتحاد کی طرح ہندوستان کے ہر گلیوں میں اس اتحاد کو پیدا کروں گا۔ شرکت کرنے سے پہلے ملت اسلامیہ کے انتشار کو ختم کرنا اور اس کے بعد میری میت کو کھانا دینا، یہی میرا ہدیہ ہوگا، آپ کا جو مجھ پر حق ہے اور میرا جو آپ پر حق ہے۔ صرف ایک ہی بات کہوں گا، منافقین، یزیدیت، میر جعفر، میر صادق کی اولادوں کا جلسہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہو رہا ہے اور یہاں سے کچھ آگے کوٹلے کے منافقین کے گولیوں کا بھی گھر ہے، کوٹلے کے پوٹلوں کا بھی ہے، سب مل کے آ گئے، آ جاؤ۔ بس اکبر اویسی کی خواہش ہے کہ وہاں آخری بی بازار چورستے کے پاس کھڑے ہوئے مسلمان تجھے واسطہ